آج پوری دنیا یعنی دور حاضر میں پوری انسانیت اضطراب، ڈپریشن، ٹینشن، اسٹریس اور بے چینی کا شکار ہے۔ ہر انسان کی کوشش اور تلاش ہے کہ کیسے اس دنیا کے جو ٹینشن، اسٹریس اور اضطراب جس کے اندر موجود ہے وہ سکون حاصل کریں۔ آپ میری بات سن رہے ہیں اور آپ یقیناً تائید فرمائیں گے دور حاضر میں سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ اضطراب، ٹینشن اور اسٹریس میں مبتلا ہے۔ اچھا، یہ ایک خود گفتگو ہے کہ کیوں ایسا کیوں ہوا، مطلب ہے عوامل کیا ہے، اسباب کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک پورا ایک موضوع ہے، اس پہ پوری گفتگو انشاءاللہ اپنے وقت میں اس موضوع کے حوالے سے ہم مفصل گفتگو کریں گے، لیکن پوری دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ تائید کریں گے وہ کیا، وہ یہ اضطراب کی دلدل میں ہے تقریباً ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ آ چکا ہے، اور اس وقت بے چینی اور بے سکونی کا بازار گرم ہے۔ جب بازار گرم ہے تو یہاں مختلف لوگ، مختلف مکاتب، مختلف ادارے اس مشکل، یہ بے چینی کی مشکل ہے، اس کے لیے حل کرنے کے مختلف نسخے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بازار گرم میں مارکیٹیں گے اور مارکیٹ میں ہر ایک کی کوشش ہے کہ وہ اس مشکل کو، جو بے چینی کی مشکل ہے، بے سکونی کی مشکل ہے، یہاں اپنا نسخہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم گارنٹی کے ساتھ جو نسخہ ہم پیش کر چکے اس سے یہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ مارکیٹ میں کون کون سے لوگ ہیں اور کیا کیا پیش کر رہے ہیں، تائید آپ فرمائیں گے۔ دیکھیے، پہلی بات کہہ رہے کہ جس کے پاس امکانات زیادہ ہو وہ سب سے باسکون ہے، زندگی گزار رہے وہ انسان سکون کے ساتھ ہے۔ امکانات کیا مطلب؟ امکانات سے امکانات میں گھر جس کا اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، نوکر ہو، چاکر ہو، بینک بیلنس، مال و دولت، جس کے پاس مال کا جتنی مقدار میں مال زیادہ ہو، بینک بیلنس زیادہ ہو، وہ سب سے باسکون انسان ہے، اس کے پاس سکون بہت زیادہ ہے۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شہرت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان فیمس ہو اور انسان جو ہے وہ جس کے پاس پاپولیرٹی ہو، کسی عہدے پہ ہو، یہ انسان جو ہے نا سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ تیسری چیز اور تیسرا نظریہ اور مارکیٹ کے اندر تیسرا نسخہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان کی افرادی قوت زیادہ ہو، جس کا خاندان بڑا ہو، جس کی فیملی بڑی ہو، یہ انسان سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ چوتھا نظریہ، وہ انسان جو سیر و تفریح پہ جاتا ہے، آؤٹنگ پہ زیادہ، سرسبز و شاداب مقامات پہ جاتا ہے، جن کا طبیعت کے ساتھ رابطہ گہرا ہو، مضبوط ہو، مستحکم ہو، یہ انسان باسکون انسان ہے، ان کی زندگی سکون کی زندگی ہے۔ پانچویں چیز جو بیان کی جا رہی ہے اور ہمارے جوان طبقہ ہے وہ اس چیز کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں، راغب ہو چکے، وہ کیا ہے؟ وہ میوزک ہے، وہ موسیقی ہے۔ دیکھیے، آپ آج کے اس دور میں ہمارے جوان سکون حاصل کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے نسخے لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، کلبز وغیرہ، سنیما کو دیکھیں، کلبز کو دیکھیں، اور اس مختلف جگہوں پہ لوگ جا رہے ہیں، ان سے پوچھیں ہمارے جوانوں سے کیوں جا رہے ہیں یہاں پہ، کہہ رہے یہ سکون کے لیے ایک راستہ ہے اور سکون کا ایک نسخہ ہے۔ آگے ایک اور چیز جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ یقیناً تائید فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ جو ایک اور نظریہ ہے اس میں یہ ہے کہ میڈیسن کا استعمال۔ اب دیکھیں، سب سے زیادہ رفت و آمد، کثرت کے ساتھ رفت و آمد آج کے اس دور میں کہاں ہے؟ میڈیکل سٹور پہ۔ کیوں؟ کہہ رہے ہمیں مختلف میڈیسن، سکون کے میڈیسن چاہیے۔ وہاں پہ بھی لوگ یہ نسخہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی میڈیسن یوز کریں گے تو آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کی یہ مشکل، بے سکونی کی مشکل، بے چینی کی مشکل حل ہو جائے گی۔ ایک اور چیز جو نسخہ پیش کر رہے ہیں مختلف مکاتب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، بے چینی سے نکلنے کے لیے، بے سکونی سے نکلنے کے لیے، دور حاضر کی سب سے بڑی مشکل ہے وہ کیا ہے؟ منشیات، ڈرگز کا استعمال، سگریٹ نوشی کرنا، اور یہ مختلف چیزیں، نشے کی مختلف چیزوں کو استعمال کرنا۔ کیوں؟ ہمارے جوان سے پوچھیں کیوں آپ سگریٹ نوشی کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ اس میں سکون ہے؟ یہ بھی ایک نظریہ اور یہ بھی ایک نسخہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ ایک اور بہت بڑی چیز کہ جس میں ہمارا یہ معاشرہ اور ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز آ چکی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تعویذ، جادو، ٹونا، دم درود، خانقاہوں میں رفت و آمد، کاہے کے لیے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ ایک اور چیز بیان کروں، وہ کیا ہے؟ یہ سکون حاصل کرنے کے لیے ہمارے جوان، خصوصاً جن کی شادی ہو چکی ہے،
शादी शुदा जोड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, खुसूसन वो हकीकी दुनिया से साइबर स्पेस की तरफ हिजरत कर चुके हैं। काहे के लिए, क्यों? उनसे पूछे, वो कह रहे हैं यहाँ हम अपनी कोई हुई चीज़ को हासिल करने के लिए, वो क्या है, सुकून नहीं है, यहाँ हमें सुकून मिल सकता है यहाँ सोशल मीडिया के इस्तेमाल में। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बयान करूँ, आगे पे इंशाअल्लाह इस हवाले से हमारी मुफस्सल गुफ्तगू होगी। देखें, सखावत और बोखल ये दो मफाहिम दीनी वैल्यूज़ है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। रद्द बदल की जो गुफ्तगू है ना, कि जहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल से कि जहाँ एक्सचेंज की बात करते हैं, जहाँ रद्द बदल की बात, चीज़ों को जो जिनकी हकीकत है, हैसियत है, उसको वहाँ से उठा के किसी और जगह लेके जाना। सखावत और बोखल की अब मैं मिसाल बयान करूँ, मेरी बात वाज़ हो जाएगी। वो क्या है? वो ये है, यहाँ हम सखी है कहाँ पे, सखावत कहाँ कर रहे हैं? हम सोशल मीडिया में जाके हिजरत कर चुके हों हकीकी दुनिया से। घर से हम आए हैं, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, जो सारी जितनी टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं, इसमें हम बेतहाशा टाइम यूज़ कर रहे हैं सखावत के साथ। इसी इंसान से पूछे, घर में आप टाइम दे रहे, वो कह रहे नहीं, वो जॉब करते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को आ जाते हैं। आप खातून से पूछे क्या हुआ, फिर टाइम नहीं है, घरेलू काम बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया में आप जाके देखें, जो हिजरत कर चुके हैं ये लोग, वहाँ सखावत के साथ टाइम दे रहे हैं, वहाँ यूज़ कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ घर में बखील है वक्त के हवाले से। ये जो रद्द बदल है, इसने बहुत हमारे लिए मुश्किलात जो है ना, हमारे सामने इसकी वजह से मुश्किलात आ चुकी हैं। एक और चीज़ पूछे कि आप इस सुकून को हासिल करने के लिए एक नुस्खा पेश किया जा रहा है, कह रहे हैं वो तन्हाई है, खलवत में जाना। ये मुख्तलिफ चीज़ें आपकी खिदमत में, मैंने पूरी एक लिस्ट बयान की। आपसे सवाल है, बताइए, ये जो लिस्ट बयान की मैंने, जिनके पास इम्कानात बहुत है, वो सबसे ज़्यादा बासकून, शोहरत है बासकून, वो इंसान जो मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंसान जो मेडिसन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये लिस्ट के अंदर जो बयान हुई चीज़ें, आया आप वाक़ईन इन चीज़ों को ये समझ रहे हैं कि इससे हमारी मुश्किल हल हो सकती है? मैं आपसे पूछता हूँ, कितने मालदार लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ रब्ता करते हैं, वो कह रहे देखिए भाई, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास इम्कानात की कमी नहीं है, हमारे पास एक चीज़ की कमी है, वो है हमारे पास सुकून नहीं है। पूछिए वो लोग जो ओहदेदार है, जिनके पास शोहरत है, जिनके ख़ानदान बड़े हैं, जिनकी फैमिली बहुत बड़ी है, जिनके पास ज़िंदगी के अंदर रौनक, सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन इसके पास, इंसान के पास सुकून नहीं है। पता है क्यों? अच्छा, यहाँ पे एक मौजू है, जिसके पास माल ज़्यादा हो, ये चीज़ें आया दीन इस चीज़ को कंडेम करती हैं, जिस दीन के नज़दीक ये चीज़ें क्या ये मायूब है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम इस पे ये मौजू को अब यहाँ यानी एक पूरी गुफ्तगू इसको हम यहाँ पे नहीं चढ़ेंगे कि माल का राब्ता और दीन का राब्ता किया है। हमारे पास जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की मिसाल मौजूद है माल के हवाले से। नहीं, हम ये गुफ्तगू नहीं कर रहे कि जिसके पास माल ज़्यादा हो तो दीन की निगाह में वो इंसान क्या है, मायूब है। नहीं, इस ऐसी हम यहाँ पे कर रहे हैं मुख्तलिफ़ मकाते, मुख्तलिफ़ इज़म्स, मुख्तलिफ़ नज़रियात, मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर जो बाज़ार घर में बेसकूनी बेचैनी का बाज़ार है, यहाँ हर एक अपना नुस्खा पेश कर रहे हैं और ये नुस्खा आपकी खिदमत में बयान किए। और क्या इससे हमारी मुश्किल हल हो गई? हाँ, यकीनन। क्यों? नुक्ता, दकीक नुक्ता है वो, ये हमें जो एड्रेस दिया है वो गलत है, रॉन्ग एड्रेस हमें दिया। क्यों? वो कैसी? जो लिस्ट में बताई वो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें कि जिससे हम बेसकूनी की मुश्किल, बेचैनी की मुश्किल को हल तो दूर की बात है, हम दिन ब दिन एहसास करते हैं कि इसमें, इस मुश्किल में, इस दलदल में हम आगे निकल रहे हैं, इस मुश्किल में मज़ीद से मज़ीद गिरफ्तार होते जा रहे हैं। आखिर क्यों? ये सवाल है। देखें, हमारी पूरी गुफ्तगू, ये तो आपकी खिदमत में 1.5 घंटे की गुफ्तगू होगी और इसके बाद भी इस हवाले से ये जो सुकून हासिल करना और जो सुकून नहीं, ये बेचैनी है और बेसकूनी है, ये मसला तो अब पूरे सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह घर आएंगे, अब शादीशुदा जोड़े की बात करेंगे, जो शादी के बाद की जो ज़िंदगी है उसमें कहाँ है, सुकून है या नहीं है, इसमें तो हम आएंगे। इमोशनल डाइवोर्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, साइलेंट डाइवोर्स के हवाले से मुफस्सल बाद में भी आपके साथ हमारी ये गुफ्तगू, ये सिलसिला जारी रहेगा और गुफ्तगू जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर इस नुक्ते की तरफ मैं मुतवज्जह कराना चाह रहा हूँ कि ये है कि असर हाज़िर में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बेचैनी और बेसकूनी है, और हर एक की कोशिश है इस बेसकूनी को रफ़ करने के लिए क्या करें। मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र, मुख्तलिफ़ इदारे, मुख्तलिफ़ आइडियालॉजी यहाँ पे आप के सामने हैं और वो अपने नुस्खे पेश कर रहे हैं। लेकिन उस नुस्खे के बावजूद भी हमारी मुश्किल हल नहीं हुई, मुश्किल में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। आखिर क्यों? देखें, ये इसकी
मिसाल में बयान करूँ, सहारा में आपने देखा होगा कि जो इंसान प्यासा इंसान होता है वो सहारा में पानी की तलाश में निकलता है और कोशिश करता है, और लेकिन वहाँ पे वो शराब से धोखा खा जाता है। शराब, यहाँ भी बेचैनी, इंसान की जो मुश्किल है, वो प्यासा है, वो सुकून की तलाश में है, उसको मुहैया करने के हवाले से वो कोशिश है उसकी, लेकिन देखिए जो लिस्ट में चीज़ें बयान की वो शराब है, वो शराब है। आइए हम आपकी खिदमत में बयान करें कि आखिर क्यों इम्कानात की कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुश्किल हल नहीं हुई। मसला कहाँ है, मुश्किल कहाँ है, क्यों हम इस मुश्किल से नहीं निकल पा रहे? देखें, मैं यहाँ एक बहुत दकीक नुक्ते की तरफ, एक बात की तरफ इशारा करना चाहूँ, वो ये है कि मसले का हल वो कैसे इस मुश्किल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो मैं बिल्कुल ठोक अल्फाज में आपकी खिदमत में। हमारी जो जंग है, जो हम जंग लड़ रहे हैं, हम गलत मैदान में जंग लड़ रहे हैं। हमारी जंग अलामात के साथ हमारी जंग जारी है, न कि बुनियादों के साथ। ये नुक्ता अपने पास महफूज रखिए, लेकिन इस पर हम आगे आपकी खिदमत में गुफ्तगू करेंगे, बयान करेंगे हमारी मुराद की है, और साइलेंट डाइवोर्स में इसका ताल्लुक हमारे इस मौजू से इसका ताल्लुक क्या, ये बयान करेंगे। लेकिन आते हैं कि आखिर क्या मसले को कैसे हल करें, सुकून को कैसे हासिल करें। ये सबसे ज़ालतुल इंसान की खोई हुई चीज़, जिसको वो हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पैसा लगा रहा है, सफ़र कर रहा है, सब कुछ कुर्बान करने पे आमादा है, तैयार है, लेकिन सुकून नहीं है। आते हैं खालिक इंसान की बारगाह में पेश होते हैं, पूछते हैं असल इस मुश्किल को कैसे हल करें। आते हैं, हाज़िरी देते हैं, कुरान जो हमारी ज़िंदगी की किताब है, पूछते हैं सुकून के असबाब क्या है, अवामिल क्या है, कैसे सुकून हासिल करें। कुरान की मुख्तलिफ आयात में मुख्तलिफ चीज़ों को सुकून के असबाब के तौर पर पेश किया है। पहली चीज़ खुदा की याद। खुदा की याद वो चीज़ है जो इंसान को ये चीज़ सुकून अता करती। अब आते हैं अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्न क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो, याद खुदा से दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता है। अब अंदाज़ा लगाइए, अगर सुकून नहीं है, जहाँ हम मुख्तलिफ मैदानों के अंदर ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इस ज़ालतुल इंसान, ये जो चीज़ खो चुके हैं, हम इसकी तलाश में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें हमारी ज़िंदगी में खुदा की याद कितनी है, हमारी ज़िंदगी में ये है या नहीं है। माशरे में हमारे जो आपस के रवाबित है, देखें इंसान का अपने रब के साथ राब्ता, इंसान का अपने आप के साथ राब्ता, इंसान का बाकी इंसानों के साथ राब्ता, और इंसान का जो है वो तबीयत के साथ राब्ता। इन चार राब्तों में देखिए हमारा राब्ता ये जो है, खुसूसन अभी जो शादी के बाद जो राब्ता वजूद में आता है, इसमें याद खुदा के हवाले से आपका जवाब क्या है? कितना ये मसला, ये चीज़, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है, याद खुदा। क्यों हम सुकून हासिल नहीं कर पा रहे हैं? ये जो हमें गलत एड्रेस दिए है, ये जो जहाँ हम गए हैं, इसी वजह से मुश्किल हाल तो दूर होने की बात है, मुश्किल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ज़िक्र खुदा सबब है, बहुत बड़ा सबब है, जिसकी वजह से इंसान को सुकून मिलता है। आखिर दूसरी चीज़ गायबाना मदद। कुरान कह रहा है वल्लज़ी अनज़ल सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन, वही अल्लाह है जिसने मोमिनीन के दिलों पर सुकून नाजिल किया है। ये गायबाना मदद है, इसके ज़रिए से इंसान को सुकून मिलता है। तीसरी चीज़ बयान करूँ, मुक़द्दस चीज़ें और उनके आसार, मुतबर्रिकात से इंसान को सुकून मिलता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्की अन यअतियकुमुत ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम। आपसे एक सवाल पूछूं, आज के दौर में सबसे ज़्यादा जमीयत, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? ये एक सवाल है मेरा। देखें मुहर्रम में मुहर्रम में आप ढूंढिए कि कहाँ लोग ज़्यादा जमा होते हैं, और खुसूसन अरबईन पे। क्यों इमाम मिर्ज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत या विलादत पर लोगों की जो है ना वो जम गफ़ीर क्यों? करबला में करोड़ों के लोग, मुख्तलिफ दुनिया से मुख्तलिफ लोग आते हैं, पता है क्यों यहाँ पे जमा होते हैं? यहाँ इंसान को सुकून मिलता है, यहाँ इंसान जाके याद खुदा के ये मज़हर हैं, यहाँ इंसान जाके सुकून महसूस करता है। यहाँ मुतबर्रिकात का तस्करा और वो मुक़द्दस चीज़ें, मुक़द्दस जगह जहाँ इंसान जाता है तो वहाँ सुकून मिल जाता है। चौथी चीज़ औलिया खुदा की तशवीक,
مثال इन्ना सलातक सकनुल लहुम, यकीनन आपकी दुआ उनके लिए मूजिब तस्कीन है। पांचवी चीज़ घर, यहाँ तक वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, और अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकून की जगह बनाया है। छठी चीज़ है रात। कुरान सूरह नमल आयत नंबर 86 में बयान फरमा रहा है, अलम यरो अन्ना जअलना लैला लियस्कुनु फीहि, क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने रात इसीलिए बनाई कि वो इसमें सुकून हासिल करें। सातवीं और आखिरी चीज़ सूरह रूम की आयत नंबर 21, जिसमें कुरान मजीद का ये इरशाद हो रहा है, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अज़वाजिकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, और ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिनसे अज़वाज पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। शादी के ज़रिए से इंसान को सुकून मिलता है। लितस्कुनु इलैहा, सूरह आराफ की आयत में भी कुरान इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, लियस्कुना इलैहा। यहाँ पे भी शादी के बाद सुकून होना चाहिए। शादी के ज़रिए से जो राब्ता वजूद में आता है मियाँ बीवी के अंदर, वो सुकून का राब्ता है, वो मोहब्बत का, वो इश्क का। ये कुरान कह रहा है, ये अल्लाह फरमा रहा है, ये खालिक इंसान ये कह रहा है कि तुम्हें सुकून चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत है, मैंने तुम्हारे वजूद के अंदर ये चीज़ रखी है और इसको हासिल करने के लिए रास्ता भी बयान किया। एक चीज़ में शादी है। सवाल ये है मेरा, शादी के बाद क्या हमारी ज़िंदगी में सुकून है या नहीं? शादी के बाद कुरान कह रहा है कि जब शादी के वक्त मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हदिये लेकर आते हैं, मुख्तलिफ वो गिफ्ट लेकर आते हैं और देते हैं। परवरदिगार आलम ये कह रहे हैं कि मैंने भी शादीशुदा जोड़ों को जो तोहफ़ा दिया है वो क्या है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। सबसे बड़ी ज़रूरत जो तुम्हारी थी, सबसे इस शादी के बाद ये जो बिल्डिंग है, इसकी जो बुनियाद है वो मोहब्बत पे ये बिल्डिंग उस्तवार है, ये मवद्दत पे उस्तवार है, ये रहमत पे उस्तवार है। ये मोहब्बत और मवद्दत और रहमत मैंने शादी के वक्त में तोहफे में दिए आते हैं घरों में। क्या वाकईन हमारे घर के अंदर सुकून है या नहीं है? क्या हम मियाँ बीवी, क्या शादीशुदा जोड़े आपस में एक दूसरे के लिए बायस सुकून है या नहीं है? देखिए ये पूरी एक गुफ्तगू है, ये भी इंशाल्लाह आप इसको नोट कीजिएगा अपने पास। जब हम कहते हैं कि एक दूसरे के लिए सुकून, आरामिश, एक दूसरे को सुकून दे, यानी कुरान ने वाज़ेह और साफ अल्फाज में ये कहा कि जो आपकी ज़रूरत थी वो मैंने तुम्हें अता की है, वो मोहब्बत और रहमत है। इंसान की जब शादी हो जाती है ना, जब ये बिल्डिंग वजूद में आती है, मैं आपकी खिदमत में एक हदीस जो कलामुकुम नूर, इस बाब से इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम कि कलामुकुम नूर ज़ियारत जामिया कबीरा का ये जुमला है, इनका कलाम नूर है और इनके कलाम से ज़िंदगी हमारी जो है वो नूरानी हो जाती है। हाके पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान की शादी होती है ना, शादी के बाद ये जो ज़िंदगी शुरू हो जाती है, ये जो राब्ता शुरू हो जाता है, ये जो बिल्डिंग अब बन गई ना, मा बुनिया फिल इस्लाम बिनाउन, कोई बिल्डिंग नहीं है, फिल मा बुनिया फिल इस्लाम बिनाउन, इस्लाम की बात कर रहे हैं, कोई बुनियाद नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल, कि जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हो, व अअज़्ज़ु, और सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, मिन तज़वीज, शादी के अलावा, शादी के बग़ैर, शादी से हट की कोई चीज़ अल्लाह को महबूब और अजीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा महबूब, सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ इस्लाम में वो शादी के ज़रिए से जो बुनियाद वजूद में आती है, जो राब्ता कायम हो जाता है, जो ये बिल्डिंग अब बन गई, अब जब ये ज़िंदगी शुरू हो गई, ये मा बुनिया फिल इस्लाम बिनाउन, अब ये बिल्डिंग, अब ये जो सिलसिला है, अब जब राब्ता है, अब ये ज़िंदगी जो शुरू हो गई, अब इसको कैसे मजबूत करें, इसको किस तरीके से, देखा होगा आपने, सुना होगा, मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ ज़लज़ले आए हैं और उस ज़लज़लों से बहुत बड़े बड़े घर वो ख़त्म हो गए हैं। हमारी ज़िंदगी शादी के बाद का जो ये मरहला और जो ये ज़िंदगी शुरू हो गई ना, अब इसको ज़लज़लों से बचाना है। देखें ये बिल्डिंग, इस दो पत्थरों का जो आपस में राब्ता है, दो ईंटों का जो राब्ता है, वो क्या है? वो मोहब्बत है। अब अगर ये मोहब्बत नहीं है, अगर अब ये ज़लज़ले आ गए और इस बुनियाद जो बहुत बड़ी
बुनियाद है, बहुत बड़ा घर है, इसको ख़राब कर सकता है वो क्या है? वो ये है कि ज़िंदगी में ये ज़िंदगी का राब्ता मोहब्बत का राब्ता ना हो, ये ज़िंदगी का राब्ता इश्क का राब्ता ना हो, आपस में उल्फत ना हो, मोहब्बत ना हो, समीमियत ना हो, आपस में एक दूसरे को देखने से इंसान सुकून हासिल ना करें। हमारा ताल्लुक़ उस मकतब से है कि उस मकतब ने जो नुस्ख़ा बयान करते हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लक़द कुन्तु अनज़ुरु इलैहा, जब मैं जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ जब मैं देखता था, जनाब सैयदा के चेहरे मुबारक की तरफ, फ़तनकशिफ़ु अल-हुमूम, जितनी भी मुसीबतें थी वो सब ख़त्म हो जाती थी जनाब सैयदा के चेहरे की तरफ देखने से। यानी वो सुकून एक दूसरे को दे रहे हैं, किस चीज़ से? देखने से। देखिए, सुकून के 3 मुख्तलिफ रास्ते हैं कि जिसमें हर एक इंसान, यानी शादीशुदा की मैं बात कर रहा हूँ, एक दूसरे को सुकून दे। देखने से सुकून, गुफ्तगू के ज़रिए से एक दूसरे की सुकून, यानी एक दूसरे के जब हम देख रहे हैं तो हम एक दूसरे से सुकून हासिल कर रहे हैं, जब हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो इससे हम एक दूसरे को सुकून दे रहे हैं, और रफ्तार के ज़रिए से, अमल के ज़रिए से। अब ये जो घर सबसे मजबूत बुनियाद और सबसे मुस्तहकम राब्ता है, लेकिन अगर यहाँ मियाँ बीवी शादीशुदा जोड़ों के दरमियान ये सुकून नहीं है, न वो एक दूसरे से देखने से सुकून हासिल कर रहे हैं, न वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू के ज़रिए से एक दूसरे को सुकून दे रहे हैं, न वो एक दूसरे को अमल के ज़रिए से, अगर ये ना हो तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है, बहुत बड़ी मुश्किल है। यानी क्या? यानी अब ये 2 जिस्म एक छत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब ये दोनों इंसान ज़िंदगी गुजार रहे, सब समझ रहे हैं कि ये मियाँ बीवी है, ये आपस में ज़िंदगी के पार्टनर हैं और जिनकी शादी हो चुकी है, और हमसाए वालिदैन समझ रहे हैं ये आपस में मियाँ बीवी है, और हमसाए जितने रिश्तेदार है, सब जो कुछ भी तकरीबन ये आप देख ही लीजिएगा, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ जो रह रहे हैं साथ में, जिनका राब्ता है, वो समझ रहे हैं ये मियाँ बीवी आपस में, ये शरअन कानूनन है, और ऐसा ही है, ये सब समझ रहे हैं। देखें अब सरकारी इदारों में देखें, पासपोर्ट में ये मियाँ बीवी है, ये ID कार्ड में मियाँ बीवी हैं, मुख्तलिफ़ कागज़ात, ये निकाहनामे के अंदर सब कुछ है, लेकिन इनके दोनों के जिस्म साथ है और दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फासला है। अगर इस तरीके से हो, इसको कहा जाता है साइलेंट डाइवोर्स, ये खामोश तलाक है, बहुत बड़ी मुश्किल है। देखें, इस्तिराब की दलदल में दुनिया, ये पहला नुक्ता हुआ। इससे निकलने के लिए लोगों ने मुख्तलिफ नुस्खे पेश किए, मुख्तलिफ मकातिब ने, ये इसका जवाब तो दूर की बात है, लोग इस मुश्किल में और आगे निकल गए। खुसूसन तीसरा नुक्ता, वो घर के अंदर जिनकी शादी हो चुकी है और इनके आपस के राब्ते को देखे, वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी में वो सुकून क्यों नहीं है, वो कि जिसके बारे में कुरान कह रहा है कि ये ज़िंदगी एक दूसरे शादी के बाद एक दूसरे के लिए ये सुकून के बायस है, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए सुकून देना है, शादी के बाद सुकून हासिल करना है, ये सब कुछ है, लेकिन क्यों नहीं है? इसमें वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ हम वो उस इलाही घराने से दूर हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल एक लिस्ट बयान करूं ताकि आगे इंशाल्लाह जो फिर गुफ्तगू, जहां तक हम गुफ्तगू को लेके जाएंगे और जहां गुफ्तगू रह जाएगी उसको आगे बयान करेंगे। पहला नुक्ता ये है कि ये जो साइलेंट डाइवोर्स है, ये जो इमोशनल डाइवोर्स है, खामोश तलाक, इसकी तारीफ़ क्या है, ये तकरीबन मुख्तसर आपकी खिदमत में बयान हो गई। दूसरा नुक्ता ये है कि अलामात क्या है, कैसे हमें पता चले कि वाकईन हम इस मुश्किल में गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं ना हो कि हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसी बात हो कि हमारे पास कोई दलील ना हो, उसकी कोई अलामत ना हो, ये दूसरा नुक्ता है। तीसरा नुक्ता ये है कि हम आपकी खिदमत में बयान करें, जब हमें तारीफ़ का पता चल गया, इल्म हो गया, दूसरे मरहले में हमें ये पता चल गया कि इसकी अलामात क्या है, तीसरे मरहले में हम आएंगे असबाब क्या है, अवामिल क्यों हम इस मुश्किल में आ गए, ये साइलेंट डाइवोर्स क्यों, वो इंसान, वो मियाँ बीवी की जिसके बारे में कुरान ने कहा ले तस्कुनु इलैहा, एक दूसरे के लिए जो सुकून थे वो अब एक दूसरे से फासले इख्तियार कर चुके हैं, एक ही घर के अंदर, एक ही छत के नीचे, बच्चे भी साथ है, हमसाए सब कुछ, सब समझ रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो किलोमीटर के फासले पे हैं, रूहानी तौर पर, रवानी तौर पर, साइको के हवाले से। क्यों ऐसा हुआ? असबाब क्या है, अवामिल क्या है? अच्छा, इसके चौथे मरहले में
असरात क्या है? असरात की जब हम बात करेंगे, ज़ौजैन शादीशुदा जो ये दो जो जोड़ा है, इसके आपस में इनकी ज़िंदगी पे क्या इसके असरात होंगे, बच्चों पे क्या असरात है। यकीन जानिए आप, जो असरात की बात होगी वहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मुश्किल से जो मियाँ बीवी के अलावा बच्चों पे जो इसकी तासीर है इस मुश्किल की, यकीन जानिए मैं एक नुक्ता यहाँ पे बयान करूँ, आप हम सबको ये अंदाज़ा हो जाएगा। जिस घर के अंदर साइलेंट डाइवोर्स, खामोश तलाक हो, उसका एक नतीजा आपकी खिदमत में बयान करूँ। बच्चों के लिए बच्चों की एक ज़रूरत है अमनियत, वो जहाँ अमन महसूस करे। सबसे बुनियादी जगह बच्चों की अमनियत के लिए वो घर है। अब ये बच्चे अगर घर के अंदर देखें कि यहाँ वालिदैन के अंदर मोहब्बत, आपस में राब्ता जो है वो मोहब्बत का राब्ता नहीं है, वो इश्क का राब्ता नहीं है, वो झगड़े और लड़ाई झगड़े और बेसुकूनी ये सब कुछ है। यहाँ बच्चे सबसे पहले इसको जो मैसेज जाता है, जो पैगाम जाता है, वो ये है, वो ये वहाँ से अमनियत हासिल करने के लिए घर छोड़ के वहाँ से फ़रार करते हैं और मुख्तलिफ़ एक ऐसी जगहों पे जाते हैं कि जहाँ वहाँ लोग हमारे बच्चों को किडनैप करते हैं, अगवा कर जाते हैं। और ये हमारे बच्चे जो फ़रार करते हैं, इसमें फ़िज़िकल फ़रार की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे घर में हैं, आप वालिदैन उनको खाना खिला रहे हैं, कपड़े सब कुछ आमादा कर रहे हैं, जो इब्तिदाई मादी ज़रूरतें हैं वो ये दोनों पूरे कर रहे हैं, दोनों। लेकिन अब ये बच्चे हमारे साथ है, लेकिन फ़िक्री तौर पर वो फ़रार कर चुके हैं, वो किसी और के पास है। इनकी फ़िक्री तरबियत कहीं और जगह से, किसी और जगह से हो रही है। जिस्मी तरबियत शायद हमारे पास हो, ये भी बहुत वो दूर की बात है। क्यों ऐसा? बच्चे ने घर के माहौल को पुरअमन महसूस नहीं किया। अब बच्चे ने यहाँ से फ़रार किया है। फिज़िकली फ़रार मुमकिन है, फिज़िकली फ़रार हो। खुसूसन मैं बिल्कुल साफ़ ये जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि जिनकी बेटियाँ बच्चियाँ हैं घर में, वो बहुत ज़्यादा तवज्जो करें। हमने इस मुश्किल को देखे, जो हमारी बातें हैं इसमें हमारा ताल्लुक़ मकतब करबला से जिनका ताल्लुक़ है, मकतब इस्लाम से जिनका ताल्लुक़ है, वहाँ ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह की बात जो है ना वो सबसे ऊपर है। ना उम्मीदी इस मकतब में ममनू है। हमारा मकतब ना उम्मीदी का मकतब नहीं है। आप यकीन जानिए, हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने ये मामले खुद हल करने हैं और हमने जहाँ हम मामले ये मुश्किल जहाँ से पेश आई है, इस मुश्किल को हमने हल करनी है। हमने जंग लड़नी है। हम जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन हमने निशानियों के साथ जंग नहीं लड़नी है, हमने बुनियादों के साथ देखें। घर से बाहर की निगाह को आज के बाद खत्म करें। घर से बाहर के लोग आके हमारी इस मुश्किल को हल करेंगे। इसको डिलीट करें, इस फोल्डर को असलन इसको खत्म करें। हमने मिलकर यहाँ पे लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर इन मसाइल को हल करना है। हमने मिलकर, और हम कर सकते हैं, यकीन जाने। आप देखिए करके तो सही। अब तवक्कुल करें, अब तवस्सुल करें, अब तलाश करें। तलाश की दुनिया, तवस्सुल की दुनिया में, तवक्कुल की दुनिया में आके देखें तो सही। घर के अंदर हम आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हम आपके साथ वादा करते हैं। हम इस मसले के हवाले से पूरी तफसील के साथ एक एक चीज़ को बयान करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ये हम वादा कर रहे हैं। ये देखिए, कुरान और सकलैन की बात करते हैं। अगर हम आके कलाम को नूर पे यकीन रखते हैं, एतकाद है कि है, तो आके ना इस कलाम नूर, इन नूरानी कलाम से अपनी ज़िंदगी को नूरानी करें। खुद शुरू करें, बिस्मिल्लाह। बयान करेंगे क्यों हम इस दलदल में फंस चुके हैं, मुश्किल में आ चुके हैं। ये हमारा जिसमें सुकून, जिसमें चैन, यहाँ पे सुकून यहाँ पे मिलना था, अब हम इस घर के अलावा घर से बाहर ढूंढ रहे हैं। देखिए, अब हम आपकी खिदमत में अलामात बयान करेंगे कि देखिए हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, और क्यों नहीं है, और असबाब क्या है, अवामिल क्या है, इसके असरात क्या है, और इसमें आप देखें राहकार क्या है, इस मुश्किल से निकलने के लिए रास्ता क्या है। आपकी खिदमत में कुरान से दो फैमिली का तस्करा करूं, अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ कैसे दूर हैं। हम इस कुरानी ख़ानदान और कुरानी फैमिली से क्यों दूर हो गए। पहली बात, कुरानी ख़ानदान में से जनाब ज़करिया की फैमिली की बात करूं। कुरान ये बयान फरमा रहा है कि इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात। घर के अंदर कुरानी ख़ानदान और फैमिली की एक खुसूसियत ये है कि वो अच्छे कामों में, खैरात में, नेकियों में, अच्छाइयों में एक दूसरे से
सबकत करते हैं, एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं। ये वो है युसारिऊना, सुरअत के साथ। देखें, दो असल फैमिली पे हाकिम है, एक असल सुरअत है, एक असल सबकत है। एक दूसरे से आगे निकलना मगर सुरअत के साथ, जल्दी के साथ निकल। कानू युसारिऊना फिल खैरात। क्या हमारे घरों के अंदर ये माहौल है? हम एक दूसरे से आगे तो निकल रहे हैं, लेकिन किन चीज़ों में आगे निकल रहे हैं? कुरान ने बयान किया कि कुरानी ख़ानदान यानी युसारिऊना फिल खैरात, नेकियों में वो सबकत भी कर रहे हैं और सूरत के साथ निकल रहे हैं। दूसरी बात, वयदऊनना रग़बन व रहबन, ये वो है, ये शौक और खौफ दोनों हालतों में हमें पुकारते हैं। तीसरी बात है ओ कानू व कानू लना खाशिईन, ये हमारे लिए खुशू करने वाले थे। यानी घर पे जो चीज़ हाकिम है वो मानवियत है। यकीन जाने अब सोशल मीडिया में देखे, अब जो टेक्नोलॉजी के अवजार है, जो भी ये मादी ज़िंदगी का निज़ाम जो हाकिम हुआ, इसने हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी मुश्किलातें जो है ना वो हमारी घरों के अंदर आ चुकी हैं। आप देखें आज के ज़माने में आपस में जो मुसाबका है, जो सबकत है, जो सूरत के साथ है, किन चीज़ों में हम सूरत के साथ एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं? किन चीज़ों में? मादियात में। जब फैमिली खानदान पर मानवी सिस्टम, मानवी निज़ाम हाकिम न हो तो उसका नतीजा हुआ। दूसरी एक फैमिली का तज़किरा आपकी खिदमत में करूं, ये ख़ानदान फातिमी ख़ानदान है, ये ख़ानदान अलवी ख़ानदान है, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की फैमिली है। 5 खुसूसियात फातिमी घराने के यहाँ बयान हो चुकी हैं। सूरह दहर में आप जाके देखें, यूफून बिन नाज़र, ये वो है कि जो नाज़र करते हैं उस पर वफ़ा करते हैं। ये वो है वयख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, ये वो ख़ानदान है कि जो खौफ रखते हैं। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, वयख़ाफ़ूना कहाँ, यानी माद क़यामत के बारे में इनको खौफ है, ये वयख़ाफ़ूना। तीसरी चीज़ वयुतइमून तामा, ये इत्आम करते हैं, दूसरों को अता करते हैं। युतइमून तामा अला हुब्बिही, अला हुब्बिही को जाके देखें, अल्लामा तबतबाई बयान फरमाते हैं, यानी ये खुद चाहते हैं, इनको की मोहब्बत भी है इस ताम के साथ, इसके बावजूद भी ईसार करते हैं। ये फातिमी घराना है जो हमारे लिए रोल मॉडल है, हमारे लिए उल्गू है। देखें, सबसे बड़ी जंग जो है वो रोल मॉडल की जंग चल रही है हमारे लिए। अब टीवी, ड्रामा, सीरियल, एनिमेशन, जो चीज़ें देख रहे हैं मुख्तलिफ लॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड के अंदर या जो मुख्तलिफ चीज़ों में किस चीज़ की जंग है? रोल मॉडल जो हमारे पास है उस दीन ने जो बयान किया है, कुरान ने जो बयान, इसको हम छोड़ रहे हैं। क्यों उस इमोशनल डाइवोर्स में हम मुब्तला हो चुके हैं? वजह ये है कि ये जो दुनिया है, ये जो रोल मॉडल की जो जंग है, इसमें दुश्मन ने जो चीज़ें पेश की हम उसमें लग गए हैं, उसमें हम जाके अपनी पूरी तवानाई को ज़ाया कर रहे हैं और सर्फ कर रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। ये फातिमी घराने की पहली सिफत यूफूना बिन नाज़र, दूसरी सिफत वयख़ाफ़ूना, क़यामत पे यकीन है, बावर है। तीसरी युतइमून तवाम, इत्आम करते ईसार के साथ। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम, ये इखलास के पैकर हैं। नुतइमून लिवजहिल्लाह, हम अल्लाह के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। पांचवी चीज़, इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा, ये है कुरान ने फातिमी घराने की 5 सिफतें बयान की। अब ये बयान करने के बाद आते हैं आपकी खिदमत में अलामात बयान करें, और अलामात के बाद फिर जाते हैं असबाब की तरफ, और असबाब अगर फुर्सत हुई उसके बाद हम जाएंगे असरात की तरफ, और आगे आखिर में बयान करेंगे अमली तौर पर क्या करें, कौन कौन से काम अंजाम दें, कौन कौन से रास्तों से हम अपनी इस मुश्किल को हल कर सकते हैं। हमने गुजारिश की कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह का ताल्लुक मकतब कुरान से हमारा ताल्लुक वो ये है कि हम ना उम्मीद ना हो, या उम्मीद की भरपूर कोशिश करें अपने घर के अंदर, और हम ये कहें कि हम ये कर सकते हैं। देखिए, मैं एक और चीज़ भी बयान करूं कि आज के दौर में हम किस चीज़ के लिए परेशान हैं, ये खुद हम फैसला करें। खुद आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक, कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, हम किन चीज़ों के लिए परेशान है। कुरान ने जो बयान किया है वो आपकी खिदमत में बयान करूं कि व अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून क़ालू इन्ना कुन्ना फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन। क़यामत के दिन जब ये बहिश्त में, जन्नत में होंगे, जन्नती आपस में जब गुफ्तगू करेंगे तो उसमें एक दूसरे से सवाल करेंगे क्या हुआ, कैसे हम जन्नत में आ गए, इल्लत क्या थी, वजह क्या थी।
تو قرآن نے بیان کیا ہے یہاں پہ، قرآن نے جو جس چیز کی بیان کی کہ آپ دیکھیں جنت میں آنے کے لیے تو میں دنیا میں جو کچھ آپ انجام دے رہے ہیں، جو آپ کے عمل ہے، اس سے آپ اپنے لیے جنت اور جہنم کا خود فیصلہ کر رہے ہیں۔ قالوا ان كنا قبل في اهلنا مشفقین، ہم دنیا میں خاندان کے حوالے سے مشفق تھے، یعنی ہماری توجہ تھی گھر کے حوالے سے۔ یقین جانیے، آپ لسٹ بنائیں ہم کن چیزوں کے لیے پریشان ہے، کیا گھر میں ہم اپنے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پریشان ہے یا نہیں ہے، بچوں کے لیے ہم پریشان ہے یا پریشان نہیں ہے، اگر ہے تو یقین جانیں قالوا انا كنا قبل کہاں فی اہلنا مشفقین، دنیا میں۔ آگے آپ کی خدمت میں دیکھیں ایک چیز آپ یقین جانیں، شادی کا جو فلسفہ ہے، شادی کی جو حکمت ہے اور شادی کے جو ثمرات ہے اور شادی کی جو نتائج ہے، آپ کی خدمت میں ایک بیان کے لیے تسکنوا الیہا، شادی ہو گئی ایک دوسرے کے لیے سکون، ایک دوسرے کے لیے ہمیں کیا ہونا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے سے سکون، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے سے سکون، ایک دوسرے سے ہر عمل میں سکون۔ انشاءاللہ شادی کے حوالے سے آپ خود بھی جا کے مطالعہ کریں کہ جہاں ہم آئے ہیں، شادی کے بعد دیکھیں تکامل، کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ دین کا فیصلہ ہے۔ یہ کب انسان پہنچ سکتا ہے کہ جب انسان اپنی اس زندگی میں اس سفر کے لیے ہم سفر کا انتخاب کرے، اور وہ شادی ہے، اس کے ذریعے انسان وہ سفر طے کر سکتا ہے۔ اور یہ سفر انسان اس گھر کے اندر جو کچھ ہے، دیکھیں ایک اور بات بھی یہاں بیان کروں، خاندان کے متعلق دین کی نظر اور غرب کی جو نظر ہے، اب یقین جانے 180 کا فاصلہ ہے، زاویے کا فاصلہ ہے۔ دین کی نگاہ کیا ہے؟ دین کی نگاہ ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ عبادت ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ایک تحفہ آپ کو ایک گفٹ دوں، دیکھیں یقین آپ جانے کس مقصد سے ہمارا تعلق ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جلوس المرء عند عیالہ، انسان کا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنا، اس کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے؟ شادی کے بعد شادی شدہ جوڑے آپس میں کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان پہ میاں بیوی بیٹھے، بچے بیٹھے، کھانا کھا رہے ہیں، یہ آپس کی جو بیٹھک ہے، یہ جو بیٹھنا ہے دسترخوان پہ، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں جلوس المرء عند عیالہ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنا افضل من اعتکاف، یہ اعتکاف سے افضل ہے۔ معمولی بات ہے، کہاں کی اعتکاف کی بات کر رہے ہیں؟ اعتکاف تو مسجد میں انجام دیتے ہیں۔ پیغمبر خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فی مسجدی ھذا، میری مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنا ایک طرف، اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھانا، یہ زیادہ افضل ہے اس مسجد میں کہ جو مسجد نبوی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں بیٹھنا یہ ہے کہ میں ہاتھ میں موبائل اس میں اسکرولنگ کر رہا ہوں، بیٹھ کے موبائل کی طرف ہے اور موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دنیا میں سب لگے ہوئے ہیں، اس طرف سے ٹی وی جو ہے نا وہ چل رہا ہے، ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں مختلف، یہ مراد ہے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں بیٹھنا دسترخوان میں ایک دوسرے کو دیکھنا، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں مودت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ جو اساسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بلڈنگ اپنی جگہ پہ قائم ہے، سالم ہے اور ابھی تک باقی ہے، وہ قرآن نے فرمایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ مودت ہے، وہ محبت ہے، وہ رحمت ہے، اس کی وجہ سے یہ بلڈنگ ابھی تک باقی ہے۔ اب یہ دسترخوان میں بیٹھنے سے محبت کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ محبت بڑھ رہی ہے، یہ مودت بڑھ رہی ہے۔ خوب یہاں دیکھیں ہر چیز کو قرآن نے، جب شادی ہو جاتی ہے، جب یہ زندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ عبادت کی نگاہ سے ہیں، عبادت کی نگاہ سے۔ لیکن غار اب ہمارا دیکھیں، میں بالکل رد و بدل کی جو بات کر رہا ہوں نا، یہ ایکسچینج کی بات کر رہا ہوں، اس سے ہم کتنے مشکلات میں، یہ جو سائلنٹ ڈائیورس کی ایک بہت بڑی مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے آج ہم خواتین، وہ جو کام پہ جاتی ہیں، جو جاب پہ جاتی ہیں، وہ لوگ جو گھر سے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، وہ عطر لگاتے ہیں، وہ مسواک، یہ ساری چیزیں مختلف کام کرتے ہیں، تاکہ جب وہ اجتماع میں آتا ہے، لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، تو ظاہر کے حوالے سے وہ آراستگی ہو، ظاہر کے حوالے سے کوئی مشکل نہ ہو۔ جبکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ 4 چیزیں اپنے پاس ہمیشہ آپ رکھتے تھے، اور اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ آئینہ،
دوسری چیز کیا ہے وہ عطر ہے، تیسری چیز کیا ہے وہ کنگھی ہے، چوتھی چیز مسواک ہے۔ اور جب وہ گھر جب آتے تھے داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے عطر لگاتے تھے۔ اب یقین جانے آج ہم گھر سے باہر جانے کے لیے عطر لگاتے ہیں یا گھر میں آنے کے لیے؟ یہ دیکھیں اس ایکسچینج کا، اس رد و بدل کا جو اثر ہے جو گھر کے اندر، سب سے بڑی مشکل یہ ہے، یہ آج ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کو کس طریقے سے ہونا چاہیے، دین نے کیا بیان کیا ہے، ایک رد و بدل کی وجہ سے آج خاتون کی کوشش ہے گھر سے نکلنے کے لیے، باہر لوگوں کے سامنے آنے کے لیے۔ وہ آپ دیکھیں، یہ تو ایک پوری گفتگو ہے کہ میک اپ کی دنیا اور زیبائی کے حوالے سے گفتگو اور اس کا جو استعمال ہے، اور دین کے اندر خاتون کے لیے دو جگہوں پہ تاکید آئی ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو مزین کرے، ایک اپنے شوہر کے لیے، اور دوسری بات جب وہ نماز پڑھ رہی ہے تو نماز میں جب اس کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہو۔ لیکن آج کہاں پہ یہ کیا سلسلہ ہوا؟ غرب نے ہمارے گھر کے اندر جو اساسی یہ لوگ ہیں، شوہر ہے اور بیوی ہے، اس کے حوالے سے کیا کنسپٹ لے کر آ گئے ہیں؟ دین سے دوری کی نت خوب یہ آتے ہیں، واپس پلٹے دین کی طرف، پلٹے دین کی طرف۔ دین کو بھائی جو محرم میں لوگ بیان کرتے ہیں ان سے پوچھیں، جو ممبر سے بیان کرتے ہیں، جو خطیب ہیں، جو مولانا ہیں، جو ذاکر ہیں، جو مسجد میں جو پیش نماز ہے، جن کے پاس ممبر ہے، جن کے پاس اجتماعی کوئی پلیٹ فارم ہے، ان سے پوچھیں کہ بھئی دین کا کانسیپٹ کیا ہے شادی شدہ گھر کے ماحول کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے ان روابط کو کیسے مستحکم کریں۔ یعنی جب اللہ نے ہمیں یہ گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، محبت کا تحفہ دیا ہے، مودت کا، رحمت کا، یہ ہمیشہ ہی تحفہ رہے گا؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، اس کو سیٹ کریں ہم، اس کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے۔ کیسی حفاظت کرنی ہے؟ اس میں ہم اسکیلز کی دنیا میں آپ سے گفتگو کریں گے، آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ دیکھیں آپ کی خدمت میں یہاں علامات بیان کروں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سائلنٹ ڈائیورس کی جو بات ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ اس میں مشکل میں یہ کیوں ہم مبتلا ہو گئے، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم باور تو کریں، ہمیں یقین حاصل ہو جائیں۔ پہلی بات یہ ہے معمولی، اچھا یہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، یہ ایک ممکن ہے اس مشکل میں سب ایک جیسے نہ ہوں، ممکن ہے کوئی بہت ابتدائی مرحلے میں ہو، ممکن ہے کوئی تقریباً 30-40% اس مشکل میں گرفتار ہو، ممکن ہے کوئی 60-70 سے اوپر کی بات ہو۔ ہم نے سب کی بات، ہم ویکسینیشن کی بات بھی کریں گے، وہ جن کی شادی نہیں ہوئی شادی کرنے جا رہے ہیں یا جن کی اب شادی ہو چکی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ جو شادی سے پہلے جو رابطہ ہوتا ہے، انگیجمنٹ کے بعد کا جو رابطہ ہوتا ہے، نکاح کے بعد جو رابطہ ہوتا ہے، رخصتی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یا رخصتی کے بعد کا پہلا جو سال ہے اس میں جو رابطہ ہوتا ہے، 3-4 سال کے بعد، 2 سال کے بعد یہ رابطہ کیوں دن بہ دن خراب ہوتا چلا جاتا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس پہ آپ سوچیں۔ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی سب پڑھ رہے ہیں، یعنی ان سے پوچھیں زندگی میں نے یہ معلومات حاصل کیے ہیں، والدین نے کتنا سمجھایا ہے اپنے بچوں کو اس شادی کے بعد کی زندگی کے حوالے سے، کتنی چیزیں ہمارے پاس دیکھیں۔ جب ہم شادی میں 2 تحفے دے رہے ہیں، کہ کبھی ہوا ہے کہ ہم شادی پہ ایک ایسی کتاب دیں ان دونوں کو کہ وہ اس میں یہ بیان ہو کہ آپ اس رابطے کو کیسے مستحکم کریں، مضبوط کریں؟ اس رابطہ جو شادی کے بعد کا جو رابطہ ہے، وہ رابطہ وہ جگہ ہے یہ کہ جس کے بارے میں بیان کیا آپ کی خدمت میں۔ قرآن کی آیت ہے میثاقاً غلیظا، یہ وہ عہد ہے، عہد عظیم، بہت بڑا رابطہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ قرآن سورہ فرقان میں ارشاد فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندوں کی علامات کی جہاں گفتگو ہے وہاں یہ ہے وَيَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، پروردگارہ ہمیں اپنی ازواج سے اور اپنی اولاد سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کریں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہاں گھر کے اندر شادی کے بعد بچوں نے جو کام کرنا ہے یہاں امامت اور رہبری، متقین کی رہبری کے لیے ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ یہ کوئی معمولی جگہ ہے، کتنی بڑی جگہ ہے۔ یہاں پہ کیا ہونا ہے؟ یہاں پہ لشکر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لشکر کے سپاہیوں کی تربیت ہونی ہے۔ بہت بڑی جگہ ہے شادی کے بعد، یہاں پہ بہت بڑے معاملے کرنے، یہاں بہت بڑے فیصلے کرنے، یہاں پر بہت بڑا سفر طے کرنا ہے۔ اس سفر کے لیے ہم سفر کی ضرورت ہے، لیکن کیا کریں؟ شادی کی تعریف آپ سے سوال ہے، آپ ہمیں جواب سینڈ کریں، شادی کیسے کہتے ہیں؟ غرب نے کیا تصور دیا ہمیں؟
आके दीन से पूछे शादी कैसे कहते हैं। अगर शादी का कॉन्सेप्ट हमारे लिए वाज़ेह न हो तो साइलेंट डाइवोर्स का मतलब ही यही होगा। जब हम शादी कर रहे हैं, शादी यानी क्या, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा कैफ़ वजदत अहलक, बताइए सैयदा को कैसे पाया आपने। शादी की पहली रात गुजर चुकी है। पहली रात गुजरने के बाद सवाल, वो भी रहमत लिल आलमीन, अजीम पैगंबर, खातमुन नबीयीन, सबसे अफजल नबी, अमीरुल मोमिनीन, नफ्स रसूल, उनसे पूछ रहे, सवाल कर रहे हैं सैयदा को कैसे पाया। पता है जवाब क्या दिया? शादी का जो तसव्वुर दिया है अली ने, अली वालों को यहाँ से लेना चाहिए, ये हमारे लिए रोल मॉडल। तो आपने फरमाया नहीं मलआन, मुझे दोस्त मिल गया, मुझे हम सफ़र मिल गया। किस दोस्त, किस चीज़ के लिए दोस्त, हम सफ़र किस चीज़ के लिए? देखिए हम मुसाफिर हैं, हम अल्लाह की तरफ सफ़र कर रहे हैं, इस सफ़र में हमें हम सफ़र चाहिए। यकीन जाने इंसान चाहे वो मर्द हो या खातून, दोनों नाकिस है, दोनों अपने इस तकामुल की सफ़र को तय करने में एक दूसरे के मोहताज है, बिल्कुल अलसविया दोनों। ऐसा नहीं है कि मर्द की ज़रूरत नहीं है खातून की, नहीं, दोनों की ज़रूरत है। इस हम सफ़र की ज़रूरत है। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं नेअमल औन अला ताअतिल्लाह, मुझे अल्लाह की इताअत के लिए बेहतरीन दोस्त मिल गया। शादी यानी अब देखिए, अब घर के अंदर अगर ये माहौल हो कि यहाँ मुझे अल्लाह की इताअत में सबसे बेहतरीन दोस्त मिल गया, क्या यहाँ अब जो राब्ता होगा वो मोहब्बत का राब्ता नहीं होगा? यहाँ राब्ता होगा क्या वो इश्क का राब्ता नहीं होगा? ये राब्ता रहमत का राब्ता नहीं होगा? ये राब्ता उल्फत का राब्ता नहीं होगा? ये राब्ता एक सालिम राब्ता होगा, एक इलाही राब्ता, एक फातिमी राब्ता, एक अलवी राब्ता, एक कुरानी राब्ता होगा। अब ये घर इलाही और कुरानी और फातिमी और अलवी ये घराना हो जाएगा, और यहाँ जो तहजीब हाकिम है वो तहजीब अलवी हो, तो उस सूरत में यहाँ साइलेंट डाइवोर्स का तस्वर कहाँ है? हम गर्ब से ले रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है, और वो भी फिल्मों के ज़रिए से। आपको मालूम है कि किस तरीके से वो अपने कल्चरल को यहाँ हमारे घरों के अंदर वो कल्चर डेवलप कर रहे हैं, और वो हम फॉलो कर रहे हैं गैर मुस्तकीम तौर पर। हमें वापस पलटने की ज़रूरत है। हम वापस पलटें, और यहाँ उम्मीद का मकतब कुरानी मकतब है, और ये इलाही मकतब, ये अलवी मकतब, ये फातिमी और ये करबलाई मकतब, इसमें हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे, ये उम्मीद है। खूब आते हैं, पहली बात ये है ये कि हम ये तसव्वुर करते हैं, ऐसा तो ना हो कि हम कहें भाई अब ये अचानक की मुश्किल पेश आ गई, अब साइलेंट डाइवोर्स हो, इमोशनल डाइवोर्स में हम जो है ना गिरफ्तार हो गए। नहीं, इसके 5 मरहले हैं। पहला मरहला क्या है? मामूली इख्तिलाफात से ये सिलसिला शुरू हो जाता है, ये पहला मरहला है। देखें घर के अंदर मसाइल हतमन है, ज़रूरी है, इसका कोई मुनकर नहीं है। देखें घर के अंदर मुश्किलात है। अगर कोई आप हमें ये कहें कि घर के अंदर मसाइल नहीं होंगे, इख्तिलाफात नहीं होंगे, मुश्किलात नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें, ये जेब से मुफ्त में बात कर रहे हैं, जैसे कोई हकीकत नहीं है। इख्तिलाफात है, लेकिन इस इख्तिलाफात को हैंडल करने की ज़रूरत है और मैनेज करने की ज़रूरत है। खुसूसन अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, ये जो घर का जो क़य्यम है, असल सुतून वो मर्द है, इसको मुदीरियत आनी चाहिए, वो मुदीर हो। अगर ये मसाइल को बेहतर से बेहतर तरीके से इसको हैंडल कर सकता है इंसान, तो यकीन जाने ये रुश्द का सबब है। ये इस घर के अंदर इंसान रुश्द कर जाता है, ये एक नुक्ता। लेकिन अगर ये इख्तिलाफ मुदीरियत नहीं है हमारे पास, ये इख्तिलाफ दिन ब दिन इसके अंदर शिद्दत आएगी, इसके अंदर वसअत आएगी, और ये इख्तिलाफात दिन ब दिन ख़तरनाक होते चले जाएंगे। क्या हो जाए? नतीजा क्या होगा? नतीजा इसका ये होगा कि ये दोनों जिस्म, इस दोनों इंसान के जिस्म एक छत के नीचे है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एहसासात का बहुत बड़ा फासला आ गया, गैप आ चुका है, बहुत बड़ा फासला। ये किलोमीटर के, यानी ये रवैये जो हमारे हैं, इस रवैयों से मुमकिन है दो जिस्म करीब है लेकिन वो बहुत दूर, वो बहुत इस दोनों में फासला हो। मुमकिन है दोनों रवैये का जो नतीजा है वो ये कि दोनों बहुत दूर हैं जिस्मी हवाले से, लेकिन बहुत करीब है। पहला मरहला क्या है? वो ये है कि इख्तिलाफात से ये इसमें सिलसिला शुरू हो जाता है, मामूली इख्तिलाफात। दूसरी बात यह है इख्तिलाफात की तकरार और उनका पुख्ता और कवी हो जाना, उनके अंदर शिद्दत आना। ये अगर हो सिलसिला, इसकी हमने गुजारिश की, अगर मुदीरियत ना हो, मैनेजमेंट की मुश्किल हो, हैंडल नहीं कर सकते हम, तो
تو یہ مرحلہ دوسرا ہوگا، اور اب ہم ایموشنل ڈائیورس کی طرف جا رہے ہیں۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے ان کی؟ یہ زوجین کا ایک دوسرے سے بیزاری، ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت لگنا شروع کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ یہ اب ناراضگی تو ہے، لیکن اس کے اندر یہ ناراضگی، اس کے اندر تکرار کے بعد کا نتیجہ ہوگا یہ طولانی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بہت دنوں، ممکن ہے گھنٹوں سے بات نکل کے دنوں میں، ہفتے میں، اور 10 دن 20 دن یہ آپس میں ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پھر جبری سمجھوتا اور جبری آپس میں میل ملاپ ہے۔ یہ 5 مراحل ہے کہ ان مراحل سے یہ انسان اس مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل ایک ہی دن میں، ایک ہی لمحے میں یہ مشکل آ گئی، نہیں، آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ یہ گھر، یہ بہت بڑی بلڈنگ، شادی کے بعد جو ایک مضبوط بلڈنگ وجود میں آئی ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے اس محبت کا جو سرمایہ ہے ہمیں دیا ہے، جو الہی سرمایہ ہے، جو قرآنی سرمایہ ہے، اس کو یہ ایک پھلدار درخت، تناور درخت ہے کہ شادی کے بعد اب اس نے جامے کو پھل دینا ہے، لیکن اس کو دیمک لگ چکی تھی، ہم متوجہ نہیں تھے، ہم دیر سے متوجہ ہو گئے۔ دیکھیں، ایک اچھے باغبان، ایک وہ انسان کے جس کا کام یہ ہے کہ وہ اس درختوں کی حفاظت کریں، وہ وارد انسان ہوتا ہے، وہ سب کچھ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ شادی کے بعد اس درخت کی حفاظت کرنی ہے، یہ جو شادی کے بعد اس نے پھل دینا ہے، اور وہ ہمارے بچے ہیں اس جامع کے اندر۔ ایک بہترین جامعہ اس وقت تشکیل پا سکتا ہے، اس وقت وجود میں آ سکتا ہے کہ جب ہمارا گھرانہ بہترین ہو۔ گھرانہ اس وقت بہترین ہو سکتا ہے کہ جب اس کے ارکان، مرد اور یہ خاتون، میاں بیوی دونوں کا رابطہ بہترین ہو، اور جب ان کا رابطہ بہترین ہوگا تو آؤٹ پٹ بچوں کی صورت میں وہ بہترین بچے ہوں گے، اور یہ بچے گھر سے باہر جا کے اجتماع کے اندر ایک بہترین اجتماع، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ لیکن اگر یہ دیمک لگ گئی تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں اس کا علم نہیں تھا، اس کا نقصان یہ ہے کہ اب ہم اچانک یہ درخت گر جاتا ہے اور ہم باہر سے دیکھتے ہیں یہ سالم ہے، لیکن اندر سے جب دیکھا تو یہ ختم ہو گیا تھا اندر سے۔ ہم ان مراحل کی طرف دیکھیں، معمولی اختلاف سے بات شروع ہو جاتی ہے، اور آپس میں جب ان کا آپس میں رابطہ بھی ہے تو جبری ہے، یہ نہیں اس میں وہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بیتاب ہے، ایک دوسرے کی محبت میں محو ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ 5 مرحلے اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ علامات کے حوالے سے بس مختصر ایک کچھ علامات بیان کروں۔ آپ کا اس موضوع کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو، موضوع کے ساتھ مربوط ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں، اب ہمیں سینڈ کریں، وقت کے اندر جتنی گنجائش، ہم گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیں گے، اور اگر ٹائم بھی ختم ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ان سوالات کا جواب حتماً دیا جائے گا۔ اور اس کی آپ فکر نہ کریں، ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں اس موضوع کی اہمیت کا پتہ چل جائے، اور اس میں اس موضوع کے اندر کتنے ہم لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس گرفتاری سے نکلنے کے لیے، اس دلدل سے نکلنے کے لیے راستے کیا ہے، یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ایک امید حاصل ہو جائے، پر امید۔ آج اس سیشن کے بعد ہم پر امید اٹھیں یہاں سے، یقین جانیں، امید ایک وہ بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا اسلحہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ زندگی گزار سکتا ہے، اور زندگی کے جو ہے نا وہ آخری لمحات سے بھی واپس پلٹ سکتا ہے۔ بس علامات کے حوالے سے سائلنٹ ڈائیورس کی جو علامات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں، کلامی رابطے میں ان کی مشکل ہو جاتی ہے، دلچسپی نہیں ہے، ایک دوسرے سے بات کے حوالے سے کوئی دلچسپی، رغبت نہیں ہے، رغبت کا نہ ہونا، اور گھر کے اندر یہ انشاءاللہ سکیلز کی بات ہوگی، جہاں ہم اس مشکل سے نکلنے کے راستے بیان کریں گے، وہاں اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دوسری بات، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا، یہ علامت ہے۔ تیسری بات، ایک دوسرے کو دھمکانا، ڈرانا، چیلنج کرنا۔ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے طلاق دوں گا، یہ کیا ہے؟ چیلنج کر رہے ہیں۔ یا بیوی اپنے شوہر سے یہ کہتی ہیں کہ میں مثلا تمہارے کھانے میں مثلا زہر ڈال دوں گی، فلان یہ چیزیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک سائلنٹ ڈائیورس کی علامت ہے۔ یہ وہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کو دے کر، یہ
वो घराना, वो चीज़, वो राब्ता यहाँ पे होना चाहिए था और है। माशाल्लाह बहुत सारे घराने होंगे। हम जो बात कर रहे हैं, हमारे माशरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी के अंदर सालिम घराने भी मौजूद है जो रोल मॉडल है, और उनकी रोल मॉडल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फातिमी घराना है इसी वजह से। लेकिन यहाँ वो है कि एक दूसरे के लिए बेताब है, एक दूसरे के लिए वो वक्त सखी है। सखावत का सबसे बड़ा, ये जो कहा ना रादो बदल की बात मैंने की, सखावत घर के अंदर इंसान को सखी होना चाहिए। टाइम के हवाले से, कलाम के हवाले से, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू, अगर गुफ्तगू में दिलचस्पी नहीं है तो ये अलामत है। चौथी बात, एक दूसरे की, पांचवी बयान की कि पांचवी चीज़ के घर में पर जो माहौल हाकिम है वो कशीदगी का माहौल हाकिम, लड़ना झगड़ना। अब ये सुकून पुरसुकून माहौल की जगह बेचैनी का माहौल हाकिम है। यहाँ तो पहलवानों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बताया आपको, घर के अंदर कार खैर में अच्छे काम, घर के अंदर काम ही करना होता है, और काम करने में एक दूसरे से हर एक सबकत करते हैं, आगे निकलते हैं, और सुरअत के साथ, असली सबकत और असली सुरअत। वकानु युसारिऊना फिल खैरात, एक कुरानी ख़ानदान की खुसूसियत है। यहाँ ऐसा नहीं, दो पहलवानों की तरह हर एक रस्सी जो है ना वो खींच के अपनी कुदरत को साबित कर रहे हैं, अपने आप को कुदरतमंद साबित कर रहे हैं। जबकि कुदरतमंद, सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान वो है जो सबसे ज़्यादा घर के अंदर मुतवाज़े हो। सबसे ज़्यादा वो है कि जिनके पास बख्शिश की ये बहुत बड़ी चीज़ मौजूद हो, वो बख्शिश वो बख्श देता है, वो आफ़ो दरगुजर करता है। यहाँ दो पहलवानों की ज़िंदगी अगर ये हो तो ये ज़िंदगी यकीन जाने साइलेंट डाइवोर्स की अलामत है। छठी चीज़ क्या है, वो ये है कि घर के कामों को पहले मिलकर अंजाम देते थे, अब ये तन्हाई में अंजाम देना पसंद करते हैं। बाज़ार जाते थे ख़रीद के लिए तो साथ जाते थे, अब हर एक की कोशिश है तन्हाई में जाके ख़रीद करें। आउटिंग पे जाते थे विद फैमिली जाते थे, अब हम देख रहे हैं बग़ैर विद फैमिली दिलचस्पी रखते हैं। और खाना मिल के खाते थे, अब ये तन्हाई में खाना पसंद करते हैं। सातवीं चीज़, असल घर की मुश्किलात को हल करने में दिलचस्पी ना हो, ये अलामत है साइलेंट इमोशनल डाइवोर्स की अलामत है। आठवीं और आखिरी चीज़, अल्लाह बचाए सबको, बेवफाई और ख़यानत करना। और ये ख़यानत आंखों से ये शुरू हो जाती है, आंखों की ख़यानत, ज़बान की ख़यानत, कानों की ख़यानत, और जाके ये जिनसी ख़यानत पे ये ख़त्म हो जाती हैं। ये साइलेंट और इमोशनल डाइवोर्स की अलामत है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस मुश्किल को हल करने के लिए पुरुमीद हैं, और हम इंशाल्लाह आज के बाद पूरी कोशिश करेंगे। हम आपके साथ हैं, हम आपका सवाल इस हवाले से, और जो बातें वक्त की गुंजाइश के अंदर जो बयान की और जो बातें रह गई इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करेंगे, बयान करेंगे। आपका भी सवाल हो वो आपकी खिदमत में बयान करेंगे, और अब हम आपके सवालात के मुंतज़िर भी हैं। उम्मीद है, दुआ करते परवरदिगार आलम से, परवरदिगारा जो बातें हमने बयान की हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम।